सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि वो राइट डिसीजन नहीं कर सकते। राइट एप्लीकेशन ना होने की वजह से उनके रिफ्यूज़ल आते हैं और बाज़ औक़ात एप्लीकेंट्स ये कहते हैं कि हमने तो राइट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, हमारे एप्लीकेशंस के सर्कमस्टांसिस तो परफेक्टली फाइन थे, लेकिन उनका रिजेक्शन आ गया, रिफ्यूज़ल आ गया। सबसे पहले आपके लिए राइट एप्लीकेशन किस तरह से चूज़ कर सकते हैं, और as a family member of British citizen, you may be parents of British citizen, you may be primary carer of British citizen child, you may be spouse of British citizen, you may be family member of British citizen who is either living with you outside the UK or who is living inside the UK, but you want to join them by submitting your visa application form. So I'm going to cover in today's video 4 types of applications. So in the end of the video, you will be able to analyze which application is right application for you. So either you should go for the first application, second application, third applications, or fourth type of application. जो सबसे पहले मैं हाईलाइट करूंगी इश्यूज़ को, जो इश्यूज़ लोगों को आते हैं। अब इश्यूज़ में क्या आता है कि सम टाइम जब आप एज ए फैमिली मेंबर ऑफ ब्रिटिश सिटीज़न पर्सन एप्लीकेशन करना चाहते हैं, उसमें पहला इशू जो आप कंसिडर करते हैं वो आपके इश्यूज़ होते हैं कि सम टाइम लोग कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम मेंटेनेंस को शो करके अपनी एप्लीकेशन कर सकें। सो सम टाइम लोगों को इश्यूज़ आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट के, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं किया होता और इंग्लिश लैंग्वेज ना करने की वजह से आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होता। सम टाइम लोगों के रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो आपके स्पाउस हैं या आपके हस्बैंड हैं, उनकी 2 मैरिजेस हैं, एक मैरिज को वो डिवोर्स नहीं कर सकते और दूसरी को वो एज ए स्पाउस नहीं बुला सकते। और सम टाइम अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट्स या ऐसे कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसकी बेसिस पे साल हर साल या तो आप एप्लीकेशन कर नहीं सकते या आपके पास इतने फिनांस इकट्ठे नहीं होते कि आप अपनी फैमिली को ज्वाइन कर सकें। सो इट्स मी बैरिस्टर शाजिया अंजम, यूके इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट विद 15 years of UK immigration experience, and I have been helping many applicants to achieve their results successfully in their UK immigration application and UK immigration appeals matter. So सबसे पहले हम बात करेंगे कि types of applications. So I'm going to cover 4 types of application. Child access visa, primary carer of British citizen child, spouse of British citizen who wants to claim exemptions from certain requirements, and finally I am going to cover human rights applications. What type of applications would be considered human rights application? Not all of the applicants will be eligible for these 4 types of applications, but you will need to choose, you will need to consider which application will be the right application for you and which applications will not be right application and will be just a wastage of your money and time and so much stress. So let's begin with the first type of applications I'm going to cover in today's video. So here you will see family visa applications we are going to cover, and then if we choose just if we begin here, so okay, so first applications will be child access application, right? अब child access application में आपके कौन से circumstances आएंगे उसमें हम यहाँ पर बात करेंगे। अब give me just one moment. ओके, सो चाइल्ड एक्सेस वीज़ा के बारे में हम बात करेंगे। अब चाइल्ड एक्सेस वीज़ा किन लोगों के लिए है और चाइल्ड एक्सेस वीज़ा सबसे पहले है क्या और क्यों अप्लाई करना पड़ता है आपको, तो उसके लिए से कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपके पास जो अमाउंट है वो तकरीबन आपके पास अमाउंट होनी चाहिए ओवर 5 लाख, आई मीन ओवर
over 2,000 pound to 2,500 pound. So why I'm saying that, because you will need to meet the maintenance, how you are going to buy your ticket, how you are going to maintain when for the first few months for your maintenance when you reach there. Because if your spouse is not earning enough amount, then you will need to show the type of application you are going to submit. So अभी ये है कि दूसरे टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज केरर वीज़ा. अब केरर वीज़ा क्या है? जब आपका ब्रिटिश सिटीजन अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर सकते, देन उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको लुक आफ्टर करना पड़ता है. और उसके लिए जैसे सच एज के कुकिंग फूड, giving them medicine, and if they are children, then taking care of them, taking them to school, picking them to school, and dropping off to school, and picking up from school as well. So this is another thing, right? So सबसे पहले ये कि आप as a family member has the right to apply to come and join them. They may not be receiving enough treatment outside the UK. आप उनके साथ आना चाहते हैं, right? Sometime लोग कहते हैं कि बच्चे जो हैं already UK में हैं और तब भी primary carer में आप उनको join कर सकते हैं if you have been taking care of them before they've left योर कंट्री. और अगर आपके साथ हैं तो तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं उनको एज ए फैमिली मेंबर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन. सो समटाइम इश्यूज जो होते हैं कि आप प्राइमरी केयर के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनको वहाँ पर सोशल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है. दिस कुड बी वन ऑफ द ग्राउंड्स. और समटाइम ये है कि उनके लिए वहाँ पे सूटेबल रिक्वायरमेंट नहीं है. सो ऑल दीज थिंग्स यू विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट. It may not be enough social support for them to avail from there. So अभी हम जो बात कर रहे हैं वो प्राइमरी केयर के बारे में बात कर रहे हैं. तो उसके लिए समटाइम ये होता है कि स्कूल एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है. बच्चे आपके साथ रह रहे हैं, बच्चे पाकिस्तान में हैं, लेकिन जो एजुकेशन है वो बहुत एक्सपेंसिव एजुकेशन है और वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं एजुकेशनल का, या स्कूल बार बार बंद हो रहे हैं. And this is not in the best interest of child. This is not in the best interest of child under Section 55 of the Borders Act. So this is going to be your best argument if your child is not going to school, or school is closed for some reason. So you can explain that. So अब इशू ये है कि अगर आप इफ़ यू अप्लाई एज ए स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन पर्सन, सो अगर आप प्राइमरी केयर में भी नहीं आ रहे और आप चाइल्ड एक्सेस वीज़ा भी नहीं अप्लाई करना चाहते, अगर आपके ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड नहीं है, तो दूसरी ऑप्शन है आपके एज ए स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन. अब as a spouse of British citizen, you may be taking care of your spouse. Your spouse is living with you and he is outside the UK. So sometimes people are mistaken कि अब वो UK से बाहर रह रहे हैं तो उनकी इनकम तो है नहीं है, they are not earning any type of money. So how can we come to the UK as being a spouse of that person? So my advice to them is, if they are taking care of their British citizen, if they are their parents, if they are their spouse, so still they should be able to come to the UK as a carer of that British spouse person, not parent, as a partner, right? So this is the difference between the application as being a parents of British child and as being a partner of British child. Now we are covering the partner of British child, partner of British citizen. So what kind of applications they can submit? So they have a number of options. We have already discussed child access visa. So child access visa means when your children are inside the UK, you are living in Pakistan, India, outside the UK, and now you want to access your child, you want to come and join them in the UK. कि आप यूके में आना चाह रहे हैं और आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, देन यू विल चूज चाइल्ड एक्सेस वीजा फ्रॉम आउटसाइड यूके, राइट? सो अभी बच्चे आपके साथ रह नहीं रहे हैं, राइट? एंड इफ योर ब्रिटिश चिल्ड्रन डू नॉट लिव विद यू, सो
देन आप उनको उनके लिए डायरेक्टली एप्लीकेशन करेंगे, या अगर आपके स्पाउस उस चीज की परमिशन नहीं दे रहा या आपकी सेपरेशन चल रही है, देन स्टिल यू कैन कम एंड ज्वाइन योर children, British citizen children inside the UK, but you will have to have then child contact order or child arrangement order from the family court. So दूसरी चीज प्राइमरी केयर वीजे के बारे में कि अगर बच्चे आपके साथ रह रहे हैं तो क्या ऑप्शंस हैं, और आप प्राइमरी केयर हैं अपने ब्रिटिश चिल्ड्रन के, तो आप एप्लीकेशन किस तरह से करेंगे। अगर आप ब्रिटिश चिल्ड्रन के साथ रह रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, उनके डे टू डे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उनको स्कूल में छोड़ रहे हैं, स्कूल से पिकअप कर रहे हैं, और आप प्राइमरी केयरर हैं ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड के, देन केयरर वीजा is going to be one of the best option. Now, carer as a British citizen who is currently living with you, who is या तो आपके, जब हम ब्रिटिश स्पाउस की बात कर रहे हैं, वो मेडिकली या फिट नहीं है, या मेंटली फिट नहीं है, साइकोलॉजिकली फिट नहीं है, एंड दे नीड योर सपोर्ट, दे नीड योर हेल्प. You are cooking for them, you are giving them medicine, you are taking them outside to just for checkup. Even sometimes brothers and sister can apply in this category as a carer of British citizen, as long as you are genuine person, as long as you are taking care of your British citizen person, then आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं. सो एज ए केरर वीज़ा जो है वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है. और ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन के बारे में अब हम बात करेंगे. 75% people cannot submit their application successfully for UK फैमिली वीज़ा. अब UK फैमिली वीज़ा में वो एप्लीकेशन क्यों सक्सेसफुल नहीं होती है? क्या वो राइट एप्लीकेशन आप चूज करते हैं या रॉन्ग एप्लीकेशन चूज करते हैं? कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो जिसमें चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा हो? यू आर पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, यू आर पार्टनर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, यू आर एडल्ट चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश सिटीजन हु इज लिविंग with you, who is having some trouble to look after themselves, and you are looking after themselves. So I'm going to cover in my today's topic 4 types of application which may be more relevant in your topic, because sometimes if your one application is not successful, then your another application will have a more chances of success when you choose right application at the right time. So it's me, Barrister Shazia Anjum, with UK immigration, 15 years legal experience, and I have been helping other immigrants in their most complicated cases successfully, not only in application but also in appeal matters. अब issues क्या आते हैं जब आप फैमिली मेंबर्स होते हैं ब्रिटिश सिटीजन के, आइदर पेरेंट्स होते हैं, पार्टनर होते हैं, स्पाउस होते हैं. अब इश्यूज जो सबसे ज़्यादा आते हैं लोगों को, वो इनकम रिक्वायरमेंट्स के होते हैं, स्पेसिफाइड एविडेंस लगाने के होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होते हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज होती हैं जिसमें वो रिलेशनशिप के इश्यूज पे पूरा नहीं उतरते, क्योंकि सम टाइम या तो उनके जो स्पाउस हैं वो सेकंड मैरिज में इन्वॉल्व होते हैं, एंड दे कैन नॉट कॉल यू एज ए स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, या फिर उनके कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इन अदर टाइप्स ऑफ डिवोर्स मैटर्स, या फिर जो पार्टनर के साथ रह रहे होते हैं. सो अब व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन विल बी द राइट एप्लीकेशन फॉर यू? आई एम गोइंग टू cover 4 types of application, and at the end of the video you will be able to choose the right application in your circumstances. Then you will have more chances of success to come to the United Kingdom and to live with your British citizen person. So first topic I'm going to cover child access visa, and the second type of application I'm going to cover primary carer visa. The third type of application will be a carer visa as a spouse of British citizen, and fourth type of application I'm going to cover in today's video is human rights application. Human right application में कौन से exceptional circumstances होते हैं, कब involve होते हैं, और कैसे आप अपनी application को successful कर सकते हैं under human rights category. So first of all, child access visa, right? So let's begin with the child access visa. So what is child access visa, right?
ओके, सो चाइल्ड एक्सेस वीजा में आप, व्हाट इज चाइल्ड एक्सेस वीजा? योर चाइल्ड इज लिविंग इन द यूके एंड यू आर लिविंग आउटसाइड द यूके। आप अपने बच्चों के साथ नहीं रह रहे और आपके बच्चे ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड हैं। अब उसमें दो टाइप्स के एप्लीकेशन हैं। एक तो ये है कि जब आपका स्पाउस कोई उसमें उनको कोई एतराज़ नहीं होता एंड दे डू नॉट ऑब्जेक्ट, they do not object your application, then you can file your application successfully and come and join your family in the UK. अब होम ऑफिस ये कहता है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप एज ए स्पाउस एप्लीकेशन कर सकते हैं तो फिर आप एज ए पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं? इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस, इट्स योर सर्कमस्टांसेस, यू हैव टू प्रूव एंड यू प्रूव दैट इन certain situation where you put your case forward with your arguments that why you are choosing to submit this application. So always what I do is whenever I submit application for my clients, I always make it clear why you are choosing this application, because unless until you just make it clear to them, then they will be confused and they will refuse your application. At the end of the time, your application is going to be refused, not their application is going to be refused, right? You have to be very careful, you have to take proactive approach and make sure you write that in your cover letter that why you are choosing this type of application. So let me tell you one thing. When if you need any help in this type of application, I have created 6 steps of formula for successful application, and if you are finding it difficult, then send me text message and I will provide you with that guide. You will see the description, a link in the description box where you will find that link if you need further information or guide in terms of child access visa. Then you can claim that free guide by clicking onto the description link. So I was talking about the child access visa, right? So child access visa is you will have to prove your relationship. अब relationship proof के लिए आप क्या लगाते हैं? अपने birth certificate लगाएंगे, आप proof of relationship लगाएंगे और फिर आप का eligibility criteria उसमें क्या होता है? You are parents of British citizen child and you have been contacting them. अब ये कैसे प्रूफ करना है कि आपके उनके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं और आप एज ए पेरेंट्स उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं? सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स होती है जो आपको कंसिडर करनी होती है। तो मेन थिंग इज दैट यू हैव बीन गेटिंग इन टच विद योर ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड। सो वो उनकी पिक्चर्स लगाएं, उनके प्रूफ ऑफ कॉन्टैक्ट्स लगाएं और ये चीज़ें आप उसमें लगा के कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपको यहाँ पर सेटलमेंट का वीज़ा मिलता है और 5 इयर्स के बाद आप परमानेंट सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेंटेनेंस कितनी चाहिए? उसके लिए कम से कम आपके पास आई विल से 2500 पाउंड आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम होना चाहिए टू शो दैट यू विल बी एबल टू कम एंड जॉइन योर British citizen child in the UK, and you can maintain yourself for the first few months period of time. I will also advise you to obtain job offer letter from any company, because when you obtain job offer letter from any company, then this will give you more credibility for your application. So let's just have a look at what's going on in here. Okay. सो दिस इज़ द थिंग व्हेन बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे या आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे। अब जब आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते, फिर आपको ऑल्टरनेटिव वे में एप्लीकेशन सोचना पड़ता है और वो ऑल्टरनेटिव वे जो है वो आप वेरी ट्रांसपेरेंटली अपने कवर लेटर में लिख सकते हैं कि आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो उस सूरत हाल में आप इमिग्रेशन के डिफरेंट रूल्स में कैटेगरी में आ जाएंगे और वो आपके एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बना देंगे। सो अब बहुत सारे लोग जो है वो साल हर साल इंतज़ार करते हैं, या तो वो अप्लाई नहीं करते या फिर जब अप्लाई करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, देन विच गिव्स यू एक्चुअली मोर स्ट्रेस कि आप स्ट्रेस की वजह से दोबारा
स्टेप लेने में उसमें घबराते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, एज आई सेड बिफोर, विल कवर डिफरेंट एस्पेक्ट इन योर एप्लीकेशन। और उसमें हमने बात की है चाइल्ड एक्सेस वीज़े के बारे में पहले अभी, और अभी आगे हम प्राइमरी केयर वीज़े के बारे में भी बात करेंगे। लेट मी जस्ट समराइज द पॉइंट्स आई हैव जस्ट सबमिटेड, आई हैव मेड टू यू, कि आप चाइल्ड एक्सेस वीज़े के लिए आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और प्रूफ ऑफ कॉन्टैक्ट विद चाइल्ड ज़रूरी होता है। और जब आप वो प्रूफ कर सके, फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, विच इज़ सैफर A1 रिक्वायरमेंट। सो सैफर A1 रिक्वायरमेंट जो चाइल्ड एक्सेस वीज़े के लिए ज़रूरी है। अब ये आपने केयरफुली इस चीज़ को बहुत ऑब्जर्व करना है। आज की वीडियो में केयरफुली इस चीज़ को देखना है कि कौन सी चीज़ें किस एप्लीकेशन पे अप्लाई होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइल्ड एक्सेस वीज़े में आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी। जब हम प्राइमरी केयर की बात करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग विद द चाइल्ड एक्सेस वीज़ा, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन, राइट। सो उसमें आप एज ए पेरेंट ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड एप्लीकेशन करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को आपको मीट करना होता है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। मेंटेनेंस आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 2500 और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 या 10,000 पाउंड आपके पास अगर हैं तो आप उनको शो कर सकते हैं, जो कि आपके पास अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों को जब रिजेक्शंस होती हैं तो वो उनके बहुत सारे फियर होते हैं माइंड में। आई कांट अफोर्ड टू पे टू मच फी, I cannot submit my application successfully, my application will not be accepted। और ये सारे फियर इसलिए होते हैं क्योंकि आपके पास क्लियर डिसीजन नहीं होता, क्लियर रोड मैप नहीं होता, किस रोड मैप पे आपने एप्लीकेशन करनी है। इवन समटाइम जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, अगर वो अपने ब्रिटिश सिटीजन भाई को या बहन को जो कि ब्रिटिश सिटीजन है, जो उनके साथ आउटसाइड द यूके रह रहे हैं, इवन आप उनकी बेसिस पे भी केयरर्स की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और वो केयरर वीज़ा जो है उसमें आपको अगेन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको प्रूफ ऑफ केयर शो करना पड़ता है। अब प्रूफ ऑफ केयर कैसे शो करना है वो भी हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आपको एक और चीज़ शो करनी है, और वो है कि वो आपके साथ रह रहे हैं। अब ये हम केयरर वीज़े की बात कर रहे हैं, चाइल्ड एक्सेस वीज़े की हमने बात कर ली। ये केयरर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, वो आपका स्पाउस भी हो सकते हैं, वो आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, और वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। जो ब्रिटिश सिटीजन मेंबर है वो आपके साथ रह रहे हैं और आप उनकी टेक केयर कर रहे हैं, उनके लिए कुकिंग कर रहे हैं, उनके लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, फिनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, फिजिकली सपोर्ट कर रहे हैं, उनके आप इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं बाय बीइंग विद देम। दिस इज कॉल्ड इमोशनल सपोर्ट। एंड हाउ डू यू प्रूव दैट? आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन द एंड ऑफ दिस वीडियो द कंप्लीट गाइड ऑफ द checklist of the documents and also the process of submitting the application. How can you submit your application if you come under the category of carer of British citizen, right? So as I said before, it's been 15 years in immigration experience, and it has been the most exciting thing when I helped people in most difficult applications and they achieve the result gracefully, because sometimes submitting right application is more important than the meeting of immigration rules requirement. उसका मतलब ये है कि अब अगर आप केरर वीज़े की बात करते हैं तो केरर वीज़ा, अब उसमें केरर वीज़े में क्या कैटेगरीज आएंगी? केरर वीज़े में आप एज आई सेड बिफोर, आप केरर हो सकते हैं ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड के केरर हो सकते हैं, आप केरर हो सकते हैं ब्रिटिश सिटीजन पर्सन जो कि आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, स्पाउस भी हो सकते हैं, तो वो भी आप उसकी बेसिस पे भी केरर हो सकते हैं। केरर वीज़ा में आपको ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली शो करना है वो क्या है? यू कैन लुक इन टू दिस स्लाइड एज वेल कि जो ब्रिटिश सिटीजन है
वो अपने आप की लुक आफ्टर नहीं कर सकते हैं। अगर वो एडल्ट ब्रिटिश सिटीजन है तब भी वो अपने आप की लुक आफ्टर नहीं कर सकते, क्योंकि या वो बीमार है या उनको साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है, इमोशनल स्ट्रेस है, कोई फैमिली मेंबर पास्ट अवे हो गए हैं और उनको आपकी जरूरत है, वो आपके बगैर यूके में नहीं रह सकते। एंड यू नीड टू लुक आफ्टर देम बिकॉज यू वांट टू लुक आफ्टर देम। यू आर मेन केयर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन पर्सन। So this is the whole point, this is the whole idea you will need to prove to UK authorities. Once you submit your case under the same terms and under the same requirement, then it's pretty much sure that you are going to get successful result, because जब आप उनको ये शो करेंगे कि आप उनके लिए कुकिंग फूड कर रहे हैं, आप उनके लिए उनको बाहर लेकर जा रहे हैं, आप उनकी फिजिकल सपोर्ट करते हैं, उनको नहलाने धुलाने में, उनके कपड़े धोने में, उनके डे टू डे काम में उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, then it means you have proved your case, right? और आप फैमिली मेंबर हैं ब्रिटिश सिटीजन के, तो आपका राइट है कि आप ज्वाइन करें अपने ब्रिटिश सिटीजन फैमिली मेंबर्स को। आपका ये मतलब राइट है कि आप उनके साथ आके यहाँ पर उनकी लुक आफ्टर करें, क्योंकि ब्रिटिश सिटीजन जो है वो अगर उनको ऑब्स्टिकल्स हैं और वो आउटसाइड द यूके, जो कि पहले आपके साथ रह रहे थे, अब चेंज इन सर्कमस्टांसेस है, अब नहीं रह सकते, तो उस कंडीशन में आपने एज ए प्राइमरी केयरर या एज ए केयरर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन यहाँ पर एप्लीकेशन करना है। समटाइम वन ऑफ द थिंग कुड बी कि उनके पास जो ब्रिटिश सिटीजन हैं इनफ सोशल सपोर्ट लाइक सोशल सर्विसेज, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, या जो सपोर्ट होती है वो अगर पाकिस्तान में या इंडिया में नहीं है, दिस कुड बी वन ऑफ द ग्राउंड्स इन योर एप्लीकेशन, यू विल हैव टू मेक दैट क्लियर। एंड इन विद रिगार्ड्स टू चिल्ड्रंस एप्लीकेशन, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एज ए प्राइमरी केयरर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड, देन आप जो है वो ये प्रूव करेंगे कि आप बच्चों को स्कूल में छोड़ के आते हैं, बच्चों को ड्रॉप करते हैं, पिकअप करते हैं, और आप प्राइमरी केयरर हैं। और सम टाइम दिस कुड बी वन ऑफ द ग्राउंड्स कि आपके बच्चों को वो स्टैंडर्ड की एजुकेशन वहाँ पे नहीं मिल रही, बच्चे ब्रिटिश हैं लेकिन वहाँ पे आउटसाइड द यूके अब चेंज हो गए सर्कमस्टांसेस, बच्चों को स्टैंडर्ड की एजुकेशन नहीं मिल रही और वो यहाँ पर आना चाह रहे हैं क्योंकि उनका बेसिक राइट है, लेकिन आपके बगैर वो यहाँ पर नहीं एक्सक्यूज मी, आपके बगैर वो यहाँ पर नहीं रह सकते। Therefore, they need you to come with them and to stay here in the United Kingdom so that you can look after them in the same way as you have been looking after them outside the UK, right? So now the issues are when you apply as a spouse of British citizen. This is the most important thing. Now you are applying under the route of carer visa, not as a spouse of British citizen under the immigration rules requirement. आप carer हैं तो अभी आप carer के route पे British citizen के लिए apply करना चाहते हैं। The difference is that कि आपके डिफरेंस क्या है इसमें कि ब्रिटिश सिटीजन इज लिविंग विद यू आउटसाइड द यूके, और आउटसाइड द यूके जब आपके साथ ब्रिटिश सिटीजन रह रहे हैं इस वक्त, तो वो उनको आपकी ज़रूरत है और आप इधर आएंगे। You are not joining them, you are actually living with them right now and you want to come with them. Joining means when they have already been living in the UK. No, this is not the thing. The test is that अभी वो आपके साथ रह रहे हैं और आप उनके साथ UK में आना चाह रहे हैं as a carer of British citizen. Even though you are spouse, but you have been living together outside the UK, you will submit the application, carer application. I hope you have understood the concept. As I said before, for child access visa क्या है कि आपके child British citizen है और वो UK के अंदर रह रहे हैं और आप उनको यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए settlement चाहते हैं as a parents, as a father of British citizen child, as a mother of British citizen child, then you will need to apply child access visa. In this kind of visa, you will have to have A1 SAFER requirement English language test and also some type of maintenance you will need to show in your bank account. You will also need to obviously in this type of application British citizen जो है वो आपके साथ नहीं अभी रह रहे और वो UK में हैं अपने दूसरे पेरेंट्स के साथ. If you are father, they are living with their mother. If you are mother, they are living with their father. And you cannot apply under the spouse visa requirement. Now you want to apply as being parents of British citizen child. So this is called, I'm just recapping it, right?
if you have any question, any concern, do let me know. I have left my personal contact number in the description box. You can send me short text message, and then I will schedule a free assessment call to assess your circumstances, which कि कौन सी कैटेगरी का एप्लीकेशन आपके लिए ठीक रहेगा, वो मैं असेसमेंट करूंगी अगर आप मुझे शॉर्ट क्वेश्चन भेजते हैं मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे। नाउ प्राइमरी केयरर की हमने बात की, तो प्राइमरी केयरर क्या है, राइट? सो इसमें बच्चे आपके साथ रह रहे हैं, यू आर लिविंग आउटसाइड द यूके और बच्चे आपके साथ रह रहे हैं और आप उनके प्राइमरी केयरर हैं, और वो है कि उसके लिए फिर आप प्राइमरी केयरर का वीजा डालेंगे, उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं करनी पड़ेगी। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ केयरर वीजा इज व्हेन यू आर स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, और वो आपके साथ आउटसाइड द यूके रह रहे हैं, राइट? सो आउटसाइड द यूके आपके साथ रह रहे हैं और आप उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। आपका ब्रिटिश स्पाउस आपके साथ पाकिस्तान में, इंडिया में रह रहा है, या आप बहन भाई हैं, तो फिर भी आप अंडर केयरर वीजा, या आप एडल्ट चाइल्ड है, लाइक यू आर सन ऑफ ब्रिटिश सिटीजन over 18 or over 21 years old, but you are looking after your parents, you are brother of British citizen, you are sister of British citizen, you are family member of British citizen, and that British citizen is currently living with you. Do you understand my point, right? कि आप फैमिली मेंबर है ब्रिटिश सिटीजन के और आप उनके साथ रह रहे हैं, एंड दैट ब्रिटिश सिटीजन इज आइदर नॉट मेंटली राइट और फिजिकली राइट, एंड दे नीड यू टू सपोर्ट देम, देयरफॉर यू आर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन एज ए केयरर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन to come with them in the United Kingdom. We have covered 3 types of application. Now we are going to cover 4th type of application, which is the most important factor of today's video. Human rights application, right? ये जान है हर एप्लीकेशन की एज ए फैमिली मेंबर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन। ह्यूमन राइट्स, अब ह्यूमन राइट्स में आपने क्या करना होता है? ह्यूमन राइट्स में आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप शो करने होते हैं और प्रूफ ऑफ केयर शो करनी पड़ती है। ये अभी आपको लिंक नजर आ रहा है, शाजिया अंजम /बैरिस्टर शाजिया अंजम। इफ यू वांट टू क्लेम योर फ्री गाइड, click on the link and claim your free guide. I will send you a free guide. What I'm just telling you now, you will be able to receive that. कि आपको हम फ्री गाइड देंगे अगर आप वो जो उस लिंक पे आपको चाहिए फ्री गाइड। इफ़ यू नीड माई हेल्प, इफ़ यू नीड द फर्दर गाइड, देन आई विल श्योरली assist you in this matter. Just go on to my website shazianjam.com and then claim that free guide. I will give you in digital copy PDF. You will be able to apply by yourself without any other help. Okay, so yes, the second thing is if you need to draft your care letter. अगर आपको केयर लेटर का ड्राफ्ट चाहिए कि जिसमें आपके चांसेस ऑफ सक्सेस होते हैं कि अगर आप केयर वीज़ा की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स टेलर मेड केस, कि जब तक आप केयर को प्रूफ नहीं करेंगे व्हाट टाइप ऑफ केयर यू आर गिविंग, and you will need to have that letter drafted by any professional person. If you want me to draft that, let me know, contact me, and then I will help you in that as well. So you will need to assess the level of care, whether or not you will qualify for this visa. As I said before, carer visa is going to be actually difficult to convince them. जब आपने उनको कन्विंस कर लिया, देन इट्स ईजियर फॉर यू टू गेट सक्सीड, बट आपको कन्विंस करना ज़रूरी होता है, और उसके लिए आपको जो ड्राफ्ट हैं, जो आपको डिफरेंट अथॉरिटी से लेटर लेने होते हैं, लेट मी नो एंड देन आई विल सेंड यू दैट ड्राफ्ट. इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्री एनीवे. ओके, मेक अ डिसीजन ऑफ टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन, केयर वीज़ा और पेरेंट्स रूट. So these are the 3 type of application. कि जब आपकी असेसमेंट होगी, then you will understand कि आपको केयर वीज़ा रूट पे जाना है, या आपको पेरेंट्स वीज़ा के रूट पे जाना है, या आपको ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करनी है. So sometime in exceptional circumstances people can claim exemption from meeting English language requirement. तो ये ह्यूमन राइट्स के एप्लीकेशन में जब हम ह्यूमन राइट्स का क्लेम करते हैं, उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज से एग्जम्पशन मिल जाती है, और वो आपको क्लेम करनी पड़ती है उनसे अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस. अब वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस
है। अगेन उसके लिए आपको किसी भी प्रोफेशनल से अपने केस की असेसमेंट करवानी होगी। इफ़ यू वांट टू हैव असेसमेंट विद मी, जस्ट बुक अ कॉल, फ्री कॉल, एंड आई विल डू फ्री असेसमेंट इन योर केस। So ड्राफ्ट ऑल द रिक्वायर्ड ग्राउंड्स, विच मीन्स कि जब आपके ग्राउंड्स स्ट्रॉन्ग होंगे आपके एप्लीकेशन के, हर एप्लीकेशन के डिफरेंट ग्राउंड होंगे। अगर आपकी केयर वीज़ा है तो डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, अगर आपके ह्यूमन राइट्स के एप्लीकेशन है तो उसके डिफरेंट ग्राउंड्स आपके बनेंगे, और अगर आप चाइल्ड एक्सेस वीज़ा की एप्लीकेशन कर रहे हैं उसके डिफरेंट ग्राउंड्स बनेंगे। डू नॉट मिक्स दैम, दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मिस्टेक अगर आप मिक्स करते हैं। हर एक के अलग अलग ग्राउंड्स होते हैं। सो अगेन इफ यू वांट एडवाइस ऑन प्रेपरेशन, के उससे उनके डॉक्यूमेंट्स को प्रेपरेशन में कैसे जाना है, क्योंकि उनके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी डिफरेंट होंगे, ग्राउंड्स डिफरेंट होंगे डिफरेंट एप्लीकेशन के, और चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी डिफरेंट होगी, क्योंकि हर एप्लीकेशन के साथ सेम डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। सो एज आई सेड बिफोर कि जितनी आजकल जो अगर आप कोर्ट में अपील करते हैं या ईसीओ को एप्लीकेशन करते हैं, हर कम्युनिकेशन जो है आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए से होगी है। ऑनलाइन रिमोटली आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, रिमोटली आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। लाइकवाइज इफ़ यू चूज़ एनी सोलिसिटर और बैरिस्टर और लॉयर टू डू वर्क for you, so you can communicate with them digitally, you can send them email, you can just share your folder with them. Always try to organize your paper, let me just pause this slide for you and I will explain that in details. Okay, so as I said before, organize your file, and how will you organize your file is by arranging them in your digital folder. What is digital folder? You will create either a G drive or OneDrive, and once you've created your digital platform drive, then you will create your folder कि आप अपने जो है वो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी एविडेंस हैं, आप उनके नाम लिखकर अपने अगर मोबाइल है या आपके स्कैनर टैबलेट है तो आप उसको पीडीएफ स्कैनर को डाउनलोड करें, वन ड्राइव डाउनलोड करें, जी ड्राइव डाउनलोड करें, और उसमें अपने पेपर्स ऑर्गेनाइज करके रख लें। व्हेन यू टॉक टू एनी लॉयर, एनी सोलिसिटर, बैरिस्टर, देन सेंड देम द होल फाइल. It's easier for you to communicate. I want to tell you today, this is the little homework you need to do, you want to do, कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन किसी भी लॉयर से असेस करवानी है तो instead of wasting your time, instead of wasting their time, it's always better to organize your initial evidence. अब initial evidence में क्या होगा? Let me tell you, because I do care about my audience, and if you haven't subscribed my channel yet, subscribe my channel YouTube, Barrister Shazia Anjum official, then you will watch all my future videos, and also press the bell icon button, okay? Then you will receive all the reminders for future videos. So let me tell you what kind of documents you will need to prepare, just generally. First of all, आप जो prepare करेंगे वो आपके होंगे आपके पासपोर्ट की कॉपीज, आपके आईडी कार्ड की कॉपीज, आपकी जो है अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, प्रीवियस डिवोर्स सर्टिफिकेट्स हैं, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, बच्चों के पासपोर्ट कॉपीज़, CNI कॉपीज़ लाइक नादरा कार्ड की कॉपीज़, और अगर हो सकता है तो आपकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, वो सारे आप अपने फ़ोल्डर में प्रिजर्व कर लें, डिजिटल फ़ोल्डर में रख लें। जैसे ही आपने किसी लॉयर से असेसमेंट करवानी है उनको आप वो फ़ोल्डर शेयर कर दें, उनको लिंक शेयर कर दें, उनको ईमेल कर दें, तो उससे क्या होगा कि वो आपके लिए आसानी होगी और लॉयर का भी टाइम बचेगा कि वो आपकी फ्री असेसमेंट करे आपके केस की, बिकॉज देन दे विल हैव टू इन्वेस्ट देयर लेस टाइम on your documents assessment. Because if you don't do that, then guess what? Then you will only be able to receive verbal assessment, not
on your evidence assessment, because it's very important when you receive your when you receive your assessment on evidence, when you receive your assessment on the merit of your application, then this will give you more chances of success, more broader idea how you can move forward in terms of your application. So ये बहुत important है होता है कि this is one of the way how you can organize your document and send it over to your lawyer. Let's move forward. Okay, so alternative methodology mean always there are number of applications. अगर आपकी एक application के merit इतने ज़्यादा high नहीं हैं तो there could be second and third type of application, but again you will have to have assessment from a professional lawyer, from immigration expert. तो उसमें आपको और आपकी alternative methodology जो भी होगी आपके केस की उसके बारे में आप understand करेंगे और आपका lawyer आपको advice करेगा. So as I said before, saving their hassle of going to doctor, professional, psychiatrist and dentist. So इसमें ये होता है कि sometime आपको professional document साथ लगाने पड़ते हैं, like आपको letter from doctor लेना पड़ता है, psychiatrist से letter लेना पड़ेगा, dentist से letter लेना पड़ेगा to support your factual background. अब वो factual backgrounds क्या है? Again जब आप assessment के लिए call book करेंगे, then we will assess your case in terms of your right application. Okay. So अब सक्सेसफुल एप्लीकेशन सक्सेस कैसे होती है? उसमें जब आप केस लॉ को इन्वॉल्व करते हैं, इमिग्रेशन रूल्स को इन्वॉल्व करते हैं, यूरोपियन रेगुलेशंस को इन्वॉल्व करते हैं, लेजिस्लेशन सच एज ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998, लेजिस्लेशन सच एज बॉर्डर्स एक्ट 2009, Section 55 of Borders Act 2009. So also previous case studies, successful proven case studies. So in this situation actually there is not just only one route to get success in your application. Whenever your application is going to be successful, you will have to consider all the relevant rules, regulations, legislation, case law. क्योंकि एक चीज़ आप एक सोर्स से पकड़ते हैं, दूसरे से, और आपके जो केस होता है उस पे आप उसको अप्लाई करके अपने ग्राउंड्स बनाते हैं. Listen, if you are going through the same difficulties and have no clue how to move forward, how to prepare the documents, which application will be the right application, how much it's going to cost you, then I think it's always better to book your free call, free assessment with any lawyer, whoever is providing free services. Not many lawyers provide free advice or free assessment because obviously it takes their time. So if you want to have your case assessed by me, just to send me text message, I will schedule your free call. At least you will have some idea what type of application you will, what type of documents you will need to prepare, what type of application you are going to choose, and how you will apply for your application. Either you will apply as a parent of British child who's living with you, or you are applying as a parent of British child who's not living with you. Okay, so whether you are going to join your children who are living in the UK, or you are coming with your British citizen because you want to accompany them, join them, either your spouse is supporting you, helping you to come to the UK, or your spouse is objecting it and is not supporting you, still we can help you and you will be able to get successful result from the UK Borders Authorities, because you have genuine relationship with your children. You need to take your first step to get the assessment of your circumstances, because if you do not do that, nobody else is going to do it for you. You will have to take the first step. पहला स्टेप लें, कॉल शेड्यूल करें, मुख्तलिफ आप जावियों से अपने केस को असेस करवाएं, सर्कमस्टांसिस बताएं, कौन सा राइट एप्लीकेशन है वो आप देखें कौन सा राइट एप्लीकेशन है, क्योंकि
एक प्रोफेशनल जिसका अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस है 10 इयर्स 20 इयर्स 15 इयर्स का, अब उसके मुताबिक आपकी सोच नहीं हो सकती, आप उस तरह से अपने केस को पुट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। देन यू आर गोइंग टू वेस्ट योर एप्लीकेशन फी विच इज़ गोइंग टू बी ओवर 1500 pound, you are going to waste your IHS health surcharges which is going to be over 1800 pound, 1874 pounds. So when you do not receive or you do not book any professional advice call, then the risk is you are going to lose your money. Many people lose their money, many people lose their fee because just वो अप्लाई करते, हमने तो सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा दिए, it's easier for us, it's easier for us to get the application successful. This does not happen, क्योंकि जब आप खुद एप्लीकेशन करेंगे तो बहुत सारे, इवन तो आपके डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो एक लॉयर्स ने लगाने हैं, लेकिन उसमें हेल ऑफ डिफरेंस होता है कि उन्होंने ग्राउंड्स क्या बनाए हैं, एप्लीकेशन कौन सा चूज़ किया है, उसमें वर्ड्स क्या लिखे हैं, क्या वर्ड्स नहीं लिखे, क्या डिस्क्लोज़ किया है, क्या डिस्क्लोज़ नहीं किया। तो ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं। जिस तरह से एक आप किसी दर्जी के पास जाते हैं तो वो जो कपड़ों का रिज़ल्ट होगा, या जो आप घर में कपड़े सिलाई करेंगे वो जो रिज़ल्ट होगा, सम टाइम अगर आप घर में कोई 10,000 का सूट लेकर आते और सिलाई में वो फट जाता है, ख़राब कर देते, बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट टाइप ऑफ स्टिचिंग यू आर गोइंग टू बी नीडिंग। सो द सेम थिंग हैपन्स इन एवरी प्रोफेशन, कि जब आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे वो अपने एक्सपर्टीज से आपके केस को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और जब आप जो है वो अपना एप्लीकेशन करेंगे, देन you will need professional advice. So look, as I said before, I have created free guide for the deserved people, and I always give the free checklist of documents for the first 10 clients of every month. So अगर आपको free checklist of documents चाहिए या free guides चाहिए, just register below or send me text message on my WhatsApp number. Make sure you send me on WhatsApp number, then I will get back to you, and I will provide you free guide and free checklist of documents. I will also assess your case for free, but you must make sure you come under the first 10 clients of the month, because sometime if you just call me when those 10 copies are gone away, जब वो पहले 10 क्लाइंट्स को हमने फ्री में सर्विसेज दे दी, तो देन यू वोंट बी क्वालिफाइड फॉर दैट फ्री असेसमेंट, क्योंकि समटाइम लोग फिर उसमें कंप्लेन करते हैं कि आपने जो है वो फ्री असेसमेंट नहीं की। द रीज़न इज़ दैट वी only just give away first 10 copies of the guide and free assessment, because it's not applicable to receive all the calls on daily basis and provide our services for free, but just to show your commitments। जो 10 पहले clients होते हैं monthly basis पे उनको free advisor support किया जाता है, और उसके बाकी के जो calls आती हैं obviously then they will have to go through the proper channel। So it's me, Barrister Shazia Anjum, UK immigration specialist. As I said before, you need your assessment. You will need to know what kind of documents will be suitable in your application, and also which application will be the right application for you. Whether कि आपके child access visa में जाएंगे, या आपके लिए primary carer as a parents of British citizen child, या as a carer of a British citizen spouse जो कि आपके साथ रह रहे हैं and they are not feeling well because या उनको कोई मेडिकल कंडीशन है, या उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, या कि ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होती हैं, और उस एप्लीकेशन में आप इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जम्पशन भी क्लेम कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की एग्जम्पशन भी एप्लीकेबल होती है, उसमें रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट्स को भी ओवरलुक किया जा सकता है अगर आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो बाकी अगर कुछ रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट्स नहीं भी पूरी हो रही, लेकिन एज ए पेरेंट्स आपकी रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो फिर आपका एप्लीकेशन उसमें मोस्ट पावरफुल एप्लीकेशन होगा जब आप एज ए पेरेंट्स ऑफ अ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड ह्यूमन राइट्स क्लेम डालते हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल क्लेम एंड यू आर गोइंग टू गेट मोर chances of success, sometime guaranteed result in your application, because many people के पहले जब हमने एप्लीकेशन किए ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स पे, उनके एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुए, इवन दो इमिग्रेशन रूल्स के तहत उनका क्वालिफाई नहीं करते थे, लेकिन ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स में सक्सेसफुल हुए।
तो ये चीज़ होती है कि आप अपने ह्यूमन राइट्स को किस तरह से पुट फॉरवर्ड करते हैं. सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट, गो टू माई वेबसाइट पेज shazianjam.com and book your free call assessment, and if something is urgent, send me text message. I don't mind actually if you send me text message on my WhatsApp, and I will get back to you on your family visa of a British citizen person. So in the meantime, you can see the link here on the screen, and you will be able to receive your free guide, checklist of documents, also assessment which application will be the right application for you. So इस पे अगर आप अपनी registration करवाते हैं, then you will be able to choose your right visa application as being a family member of a British citizen. In the meantime, take care of yourself. Thank you for being at this platform. I hope you have received so much useful information, and now you have clear idea which type of application will be suitable in your circumstances, and also which type of application will have more chances of success. That's something I will assess over the telephone, and I will see you soon in my next video. 75% पीपल एप्लीकेशंस में सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि राइट एप्लीकेशन कौन सा है. अब राइट एप्लीकेशन ना करने की वजह से बहुत सारे आपके पैसे ज़ाया होते हैं, वक्त ज़ाया होता है, और स्ट्रेस अलग से होता है. अब विच काइंड ऑफ एप्लीकेशन इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट सूटेबल एप्लीकेशन इफ़ यू आर पेरेंट्स, partner, or a spouse of British citizen person, if you are taking care of your British citizen person. I'm going to cover in today's video 4 types of application. After watching this 4 type of application, you will be able to understand which application will be the right application for you, and how you can submit your application as being a family member of British citizen. So let's begin with the first type of application. But before that, let me just tell you, it's me, Barrister Shazia Anjam. I have been helping many immigrants in terms of their UK immigration application and appeals by applying a specific methodology of my case studies, because when you submit your application in certain way, then you enhance the chances of success for your application. So first of all, I'm going to cover in today's video child access visa, और 4 किस्म के जो visas होंगे. जब उसको cover करेंगे, at the end of the video you will be able to understand which application is the right application for you, and which application will give you more chances of success. So on 4 types applications, I'm going to cover child access visa, I'm going to cover primary carer visa, I'm going to cover a carer's visa if you are spouse or if you are adult child of British citizen and British citizen is living with you. So spouse visa who wants to claim exemption from certain requirements, and also human rights application, which is most important kind of element in your application, because sometime if you cannot submit application in any of the 3 types of visa which I'm going to cover today, then you must be able to submit your application under the human rights grounds, because this is going to be the most important topic in today's video. So first of all, what is child access visa? So child access visa is when you are parents of your British citizen child, and those children are not living with you. Let me rephrase it, कि आप पेरेंट्स हैं ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड के, और वो ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड आपके साथ नहीं रह रहा, वो यूके में है और आप आउटसाइड द यूके हैं. आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मिडल ईस्ट में, जहाँ पर भी आप हैं, लेकिन आपका जो चाइल्ड है वो ब्रिटिश सिटीजन है, और या चिल्ड्रन है, एक से ज़्यादा चिल्ड्रन है, और वो यूके के अंदर रह रहे हैं. सो जब आपके बच्चे जो हैं वो यूके में रह रहे हैं, आप यूके से बाहर रह रहे हैं, सो देन यू आर गोइंग टू सबमिट योर चाइल्ड एक्सेस वीज़ा. अब ये चाइल्ड एक्सेस वीज़ा कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सबसे पहले आपके प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप एज बीइंग ए पेरेंट्स, नॉट एज बीइंग ए स्पाउस, बिकॉज दिस इज द थिंग्स मोस्ट पीपल आर मिस्टेकन, that they just want to apply the same types of requirements
as it's mentioned in the spouse visa. When you submit your application under child access visa route, then you do not have to meet the same requirement and you would meet for your UK spouse visa application. So UK spouse visa application की जो requirements हैं वो completely different है, लेकिन child access की जो requirement है वो completely different है. अब child access visa में सबसे पहले आपको proof of relationship के अगर आप अपने birth certificate से या DNA report से अगर show कर सकें you are parents of British citizen child. So first requirement is proof of relationship and the second one is इसमें ये अगर आप फादर हैं या मदर हैं और आपका स्पाउस यूके में बच्चों के साथ रह रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है, इट डज नॉट मैटर. और अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं किया है, सम टाइम यू कैन स्टिल क्लेम इट एंड वी आर गोइंग टू कवर दैट इन आवर ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन. बट फॉर चाइल्ड एक्सेस वीजा यू विल हैव टू कंप्लीट योर इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट विच इज गोइंग टू बी सेफ फॉर A1 लेवल. सो A1 लेवल का एटलीस्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड एक्सेस वीजे के लिए आपके पास अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 75% लोगों के वीज़ा एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि वो राइट डिसीजन नहीं कर सकते. राइट एप्लीकेशन ना होने की वजह से उनके रिफ्यूज़ल आते हैं और बाज़ औक़ात एप्लीकेंट्स ये कहते हैं कि हमने तो राइट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, हमारे एप्लीकेशंस के सर्कमस्टांसिस तो परफेक्टली फाइन थे, लेकिन उनका रिजेक्शन आ गया, रिफ्यूज़ल आ गया. सो सबसे पहले आपके लिए राइट एप्लीकेशन किस तरह से चूज़ कर सकते हैं और as a family member of British citizen, you may be parents of British citizen, you may be primary carer of British citizen child, you may be spouse of British citizen, you may be family member of British citizen who is either living with you outside the UK or who is living inside the UK, but you want to join them by submitting your visa application form. So I'm going to cover in today's video 4 types of applications. So in the end of the video you will be able to analyze which application is right application for you. So either you should go for the first application, second application, third applications or fourth type of applications. So जो सबसे पहले मैं हाईलाइट करूंगी इश्यूज को, जो इश्यूज लोगों को आते हैं. अब इश्यूज में क्या आता है कि सम टाइम जब आप एज ए फैमिली मेंबर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन पर्सन एप्लीकेशन करना चाहते हैं, उसमें पहला इशू जो आप कंसिडर करते हैं वो आपके इश्यूज होते हैं कि सम टाइम लोग कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम मेंटेनेंस को शो करके अपनी एप्लीकेशन कर सकें. सो सम टाइम लोगों को इश्यूज आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट के, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं किया होता और इंग्लिश लैंग्वेज ना करने की वजह से आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होता. सम टाइम लोगों के रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो आपके स्पाउस हैं या आपके हस्बैंड हैं, उनकी 2 मैरिजेस हैं, एक मैरिज को वो डिवोर्स नहीं कर सकते और दूसरी को वो एज ए स्पाउस नहीं बुला सकते. और सम टाइम अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट्स या ऐसे कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसकी बेसिस पे साल हर साल या तो आप एप्लीकेशन कर नहीं सकते या आपके पास इतने फिनांस इकट्ठे नहीं होते कि आप अपनी फैमिली को ज्वाइन कर सकें. सो इट्स मी बैरिस्टर शाजिया अंजम, यूके इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट विद 15 years of UK immigration experience, and I have been helping many applicants to achieve their results successfully in their UK immigration application and UK immigration appeals matter. So सबसे पहले हम बात करेंगे कि types of applications. So I'm going to cover 4 types of application. Child access visa, primary carer of British citizen child, spouse of British citizen who wants to claim exemptions from certain requirements, and finally I am going to cover human rights applications. What type of applications would be considered human rights application? Not all of the applicants will be eligible for these 4 types of applications, but you will need to choose, you will need to consider which application will be the right application for you and which applications will not be right application and will be just a wastage of your money and time and so much stress. So let's begin with the first type of applications I'm going to cover in today's video.
So here you will see family visa applications we are going to cover, and then if we choose, just if we begin here. So okay. So first applications will be child access application, right? अब child access application में आपके कौन से circumstances आएंगे उसमें हम यहाँ पर बात करेंगे. अब give me just one moment. ओके, सो चाइल्ड एक्सेस वीज़ा के बारे में हम बात करेंगे. अब चाइल्ड एक्सेस वीज़ा किन लोगों के लिए है और चाइल्ड एक्सेस वीज़ा सबसे पहले है क्या और क्यों अप्लाई करना पड़ता है आपको, तो उसके लिए से कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप